Hello everyone, myself is Sarvachan Verma and currently I am working as assistant professor in Ajay Kumargar Engineering College, Ghaziabad, and today I am going to discuss two important concepts. First one is activity diagram and second one is use case diagram. Now, what is the meaning of activity diagram? Let us understand. So basically in simple word, it is a workflow diagram. The activity diagram is a flow chart to represent the flow of control among activities in a system. Basically, it represents the control flow from one operations to another. Now, the flow of control in a activity diagram can be sequential or concurrent, depends on situation. If we are talking about activity, we can represent the three types of activity in activity diagram. First one is action. Action means we can say it is a method or behavior. Second one is object. Object is used to call the action. And third activity node is control. It may be a control. Control means the flow of direction for performing a particular activity, the control which move to which direction. This is represented by the control activity. Now, these are the notations which are used inside the activity diagram. So, inside this is called the start node. तो बेसिकली कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो हम लोग उसको डार्क सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी डायग्राम में. तो द ब्लैक स्मॉल फिल्ड सर्किल इन द स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर एन इनिशियल स्टेट बिफोर एक्टिविटी टेक प्लेस. कोई भी ऑपरेशन, कोई भी सिस्टम में कोई भी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहा है तो एग्जीक्यूट होने पे जो उसकी फर्स्ट स्टेट है, कहाँ से वो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट नोड. और वो एक्टिविटी वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करके लास्ट में कहाँ एंड हो रही है, दिस इज कॉल्ड द फाइनल एक्टिविटी नोड. सपोज एक नेट बैंकिंग में हम लोग पेमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं तो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड. देन आफ्टर सेकेंड फेज इज ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन के बाद सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कंप्लीशन ऑफ द पेमेंट एंड दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस. तो वी हैव परफॉर्म थ्री एक्टिविटी. फर्स्ट वन लॉगिन, देन फिर ऑथेंटिकेशन, देन फिर मेक पेमेंट. तो स्टार्ट एक्टिविटी इज द ऑथेंटिक लॉगिन आईडी and final activity is make a successful payment. Third activity which is represented by the activity node. So this is a symbol which used to represent the activity in a activity diagram. So the activity symbols are the basic building blocks of an activity diagram and usually have a short description of the activity they represent. Fourth notations है flow control. Basically a solid line which an arrow represent the direction flow of the activity. The arrow points in the direction of progressing activity. मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कि फर्स्ट एक्टिविटी के बाद सेकंड एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म हो रही है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करने के बाद user move to the authentication phase. So the control is first activity this login and password, then the control flow is connected to the authentication activity. So this arrow line or control flow will be which we used कि किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है. Join node. A join node combine two concurrent activity back into a flow. Inside this symbol you will see here two activities are come, they will be joined and become into a single activity. So join node is used to combine the two or more activity into a single activity. Next है fork node.
A fork split single activity flow into two concurrent activities. आप देखेंगे कोई एक एक्टिविटी आ रही है और वो दो एक्टिविटी में स्प्लिट हो रही है। तो बेसिकली जॉइन नोड टू एक्टिविटी को सिंगल में कंबाइंड करेगा और फोर्क नोड वन एक्टिविटी को स्प्लिट करेगा टू एक्टिविटी में। फ्लो फाइनल नोड basically is a control final node that terminates a flow. It destroys all tokens that arrive as it but has no effect on other flows in the activity. तो बेसिकली ये कोई भी एक्टिविटी को आपको टर्मिनेट करना है तो उस केस में हम लोग फाइनल नोड को यूज करते हैं। उसका सिंबल है कि आप सर्किल में और क्रॉस कर दें। Then decision node, it is a control node that accept tokens on one or two incoming edges and select one outgoing edges from one or more outgoing flow. This is just like a symbol decision box which have already used in flow chart. You will see here कि यहाँ पर एक डिसीजन बॉक्स है। डिसीजन के बाद सपोज करो मैं कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो जो ऑर्डर एक्टिविटी है उसमें दो ही चीज़ें होंगी, या तो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा या ऑर्डर रिजेक्ट होगा बेस्ड ऑन सम सिचुएशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। सिमिलरली यू विल सी हियर नेक्स्ट, देखिए डिसीजन नोड, यहाँ पर कोई एक्टिविटी आई है, डिसीजन नोड पे जाके इंक्लाइंड हुई है, उसके बाद तीन एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी या बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। तो these are the some activities, these are the some notations which is used inside the activity diagram. This is the merge node. Merge node is a control node that brings together multiple incoming alternate flow to accept single outgoing flow. आप लोग देखेंगे कि डिसीजंस पे कुछ मल्टीपल फ्लोज आ रहे हैं, वो एक ही फ्लो में उसको कन्वर्ट कर रहा है। सिमिलरली मल्टीपल फ्लोज आ रहे हैं और मल्टीपल फ्लोज में वो आगे हमारा फ्लो कंट्रोल मूव हो रहा है टू परफॉर्म द different activity या other activity. Inside this picture you will see here, this is a diagram which is show the activity diagram, and this diagram is used to represent the flow. Inside this you will see here, this is the activity, there are various activity: request node, request order, receive order, fill order, send invoice, send ship order, accept payment. These are the various activities, and close order. So you will see here, this is my final state and this is my initial state. This is the process order. The activity start हुई है इस वाले नोड से, यहाँ से एक्टिविटी शुरू हुई रिसीव ऑर्डर। ऑर्डर रिसीव होने के बाद देयर इज ए मेक ए डिसीजन, आइदर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड और ऑर्डर इज रिजेक्टेड। इफ ऑर्डर इज एक्सेप्टेड तो नेक्स्ट एक्टिविटी विल बी परफॉर्म फिल ऑर्डर, और यहाँ पे फिल ऑर्डर होने के बाद ये वाला जो नोड है ये इस फ्लो को स्प्लिट कर रहा है टू फ्लो में। फर्स्ट वन इज सेकेंड इनवॉइस एंड सेकेंड वन इज शिप ऑर्डर। दीज आर एग्जीक्यूटेड पैरेलली। Invoice will be generated, then payment will be accepted, and ship order, these two activity perform like this. After that decision box again will be work, either flow comes from this direction, either this direction. यदि ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है तो वो क्लोज ऑर्डर होके फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। यदि ऑर्डर रिजेक्ट नहीं हुआ है तो ये पूरा काम परफॉर्म होके यहाँ पर हमको ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। तो these are the examples of how activity diagram represent inside object oriented programming. So these types of diagrams comes inside the designing process. Particular ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, just like a flow of execution of different activities, we will study inside the activity diagram.
सेकंड है यूज केस डायग्राम। तो बेसिकली यूज केस डायग्राम आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि यूज का मीनिंग है कि कौन उसको यूज करेगा पर्टिकुलर उस किसी भी सिस्टम को। तो बेसिकली यूज केस डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजर इंटरेक्शन with the system that shows the relationship between the user and the different use cases in which the user is involved. Use case diagram in which your system or application interacts with people, organization or external system. What is the purpose of use case diagram? The main purpose of use case diagram is to portray the dynamic aspects of a system. It accumulates the system's requirement, which includes both internal as well as external influences. So basically they are the following purpose of a use case diagram. Basically use case diagram is useful to gather the system needs. It is used to represent the external view of the system. Third one, it recognizes the internal as well as external factor that influence the system, and it represents the interaction between the actors. What is actors? What is internal and external entity? I will discuss. These are the various elements which is used inside the activity diagram. First one is actor, second one is use case, and third one is association, and these are the some important concept like include and extend. This is the actor. Any person, any organization or anything which is interact with your system or part of the system is called actor. The symbol we will use to represent the actor in use case diagram like this. सपोज एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, उस बैंकिंग एप्लीकेशन में एक्टर कौन है? एक्टर में बी मैनेजर, में बी क्लर्क, में बी जो उस सर्वर को यूज कर रहा है वो एक्टर है। एक यूजर भी एक्टर हो सकता है। सेकेंड वन इज यूज केस। द फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, एक्टर इंटरेक्ट विद दिस and it is perform some task for us, function for us. How we can represent the use case? Like this symbol. Use case means कोई भी सिस्टम का पार्ट है जो हमको फैसिलिटेट कर रहा है, वो हमारा यूज केस है। सपोज इन ए फेसबुक अकाउंट यदि मैं लॉगिन कर रहा हूं तो वो हमारे लिए एक यूज केस है। कोई मैं पिक्चर को पोस्ट कर रहा हूं वो हमारे लिए यूज केस है। एक्टर कौन है? एंड यूजर, जो उस यूज केस को यूज कर रहा है। दिस इज द एसोसिएशन। दिस इज द सिंपल लाइन बिटवीन एक्टर एंड यूज केस. इट रिप्रेजेंट द सिंपली विच एक्टर इज इंटरेक्टिंग विद विच यूज केस, बिकॉज समटाइम इट इज बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच यूज केस इज लिंक विद विच एक्टर। तो हम लोग इस तरीके से एसोसिएशन दे सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिटवीन द एक्टर एंड बिटवीन द यूजर बाय दिस लाइन और दिस लाइन। ओके, concept of include, it is very good because of you will see here we have one use case A and we have one use case B, but inside use case A and use case B, use case C is same. तो why we can represent in different, अलग अलग इसको क्यों represent करें? तो that's why हमने इस use case को अलग represent किया, इन दोनों को अलग किया और बाद में उनको include कर दिया। So this is the concept of include. Similarly, extend means like in inheritance or extend the property of one class into another class.
तो you will see here, this is the first use case deposit fund and second one is withdraw cash. इन दोनों ही यूज केस में ऑथेंटिकेशन प्ले वेरी वाइटल रोल। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर भी ऑथेंटिकेशन करूँ, यहाँ भी ऑथेंटिकेशन करूँ, बट इट इज अ सिंपल वे। कस्टमर ऑथेंटिकेशन यूज केस को हमने दोनों जगह एक्सटेंड कर लिया, तो वो हमारा दोनों जगह यूज होगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंड एंड इंक्लूड। You will see here, this is a simple use case diagram. आप लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल और इंटरनल एंटिटी क्या है। इंटरनल एंटिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, एक्सटर्नल एंटिटी राइट हैंड साइड पर रिप्रेजेंट होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ यूज केसेस हैं, 4 यूज केसेस हैं। पहला व्यू आइटम, मेक परचेज, चेकआउट एंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। देन आफ्टर, these are the 3 actors. First one is registered customer, web customers and new customer. These are the 3 actors which are going to interact with these use cases. अब suppose new customer इस वाले यूज केस से इंटरेक्ट हो रहा है, ये इंटरनली सर्वर से ऑथेंटिकेशन ले रहा है कि ये जो न्यू कस्टमर है वो जो हमारी वेबसाइट वेब पोर्टल पे आके रजिस्टर हो रहा है, उसका ऑथेंटिकेशन कहाँ से हो रहा है, सर्वर से हो रहा है। तो दीज आर द एक्सटर्नल, दीज आर द इंटरनल एंड दीज आर द इंटरनल एंड दीज आर द एक्सटर्नल ये एक्टर वी कैन से। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं कि वेब कंज्यूमर है, वो हमारा इंटरेक्ट कर रहा है क्लाइंट रजिस्टर से, चेकआउट से, मेक पेमेंट से। तो होपली आपको समझ में आया होगा। देन आफ्टर चेकआउट हमारा जो यूज केस है वो इंटरेक्ट कर रहा है आइडेंटिटी प्रोवाइडर एंड पेपॉल से, जो भी हम लोग उससे परचेज करा रहे हैं। कोई भी कस्टमर पहले इंटरेक्ट होगा, व्यू आइटम करेगा, देन फिर मेक परचेज करेगा। तो मेक परचेज तो हो रही है सीधा रजिस्टर्ड कस्टमर के साथ ही। उसके बाद वो चेकआउट करेगा, बट चेकआउट से पहले उसका ऑथेंटिकेशन होगा। देन आफ्टर वो क्रेडिट पेमेंट से सर्वर पे जाके अपनी सर्विसेज लेगा। तो दीज आर द नॉर्मल यूज केस डायग्राम टू रिप्रेजेंट द ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। तो यू विल सी हियर कि डिफरेंट यूज केस और डिफरेंट एक्टर्स हमारे उस यूज केस से कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूज केस डायग्राम। नाउ basically, object oriented programming is a programming model that use classes and objects. Second thing, it is utilized to break down a software program into reusable code blueprints. It is called the class, and that you may use to build specific instances of things. Basically, in object-oriented programming, provide many concepts such as inheritance, data binding, and polymorphism. The programming language where everything is represented as an object is known as truly object-oriented programming language. Smalltalk is considered as the first truly object-oriented programming language. These are the various features of object-oriented programming is object, then class, then inheritance, polymorphism, abstractions and encapsulation. These are the various features of object-oriented programming. If we talking about object, suppose कोई भी सिस्टम है, कोई भी एप्लीकेशन है और एक बैंकिंग सर्वर के लिए कस्टमर उसका ऑब्जेक्ट है, जो उस बैंकिंग सर्वर में जितनी भी क्लासेस हैं, यदि वो उनको एक्सेस कर पा रहा है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो उन क्लासेस में जो भी क्लासेस एंड मेथड्स हैं, जो वेरिएबल्स एंड मेथड्स हैं, उनको एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट मीन्स ए रियल वर्ल्ड एंटिटी
such as pen, chair, tables, etc. In object-oriented programming methodology, design a program using class and objects. It simplifies the software development and maintenance by providing some concept. Now, you will see here what is the meaning of class. Basically, a class is a collection of objects. It is a logical entity. A class in C++ is the foundational elements that leads to object-oriented programming. A class instance must be created in order to access and use the user-defined data types, data members and data functions and member functions. And object class act as its blueprint. आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि मैंने क्लास कार को रिप्रेजेंट किया है. दिस इज द स्टैटिक व्यू ऑफ द सिस्टम, और इनसाइड दिस कार आई हैव डिक्लेयर वन मेथड माइलेज एंड वन डेटा इज कंसिडर एज ए स्पीड. अब ये जो कार क्लास है, ये वाली क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज करो यही वाली क्लास जो हमने अपने सर्वर पे इसका हमने जो प्रोग्राम सेट किया हुआ है, अब हम इस क्लास कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं C1, C2, या सपोज मारुति, हुंडई. अब ये सेम जो ऑब्जेक्ट्स हैं हुंडई एंड मारुति, इस वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आके उस ब्लूप्रिंट की जो प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करी है उसको एक्सेस कर रहे हैं. तो बेसिकली हमने क्लास ली है. इवन इफ डिफरेंट नेम्स एंड ब्रांड्स मे बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कार्स, all of them will have some characteristics in common, such as 4 wheels, speed limit, range of miles, etc. In this case, the class of car is represented by the wheel, the speed limits and mileage. ये देखिए in C++ how we can represent the class and objects. You will see here we have declared one class name as box. Inside this class we have declared data members in private section and member function in the public section. प्राइवेट का मतलब है कि ये डेटा मेंबर्स इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे, और पब्लिक सेक्शन का मीनिंग है कि ये मेंबर्स कहीं भी एक्सेस हो जाएंगे. यू विल सी हियर हमने 3 मेथड्स, 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, बॉक्स B1, B2 एंड B3. अब these B1, B2 and B3 objects access the facility of class box. So this is the representation of class and objects, how class and objects will work. Inheritance. So it is the most important features in object oriented programming is inheritance, in which one object acquire all the properties and behavior of the parent object, known as inheritance. इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी मीन्स हमने एक कोड बना के रख दिया, अब हम उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं, मतलब बार बार हमको उसको राइट करना नहीं पड़ रहा, हमने उस कोड को बना दिया है, अब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, रीयूजेबिलिटी अचीव कर रहे हैं. एंड इट इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो बेसिकली इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, सब क्लास, सुपर क्लास एंड रीयूजेबिलिटी. Subclass, it is called the subclass or drive class, refer to a class that receive properties from another class. Super class को हम base class भी बोलते हैं, refer to the class from which a subclass inherit its property. And finally, reusability. Reusability means as a result, when we wish to create a new class but an existing class already contains some of the code we need,
we can generate our new class from the old class. Thanks to inheritance, this allows us to utilize the fields and methods of the pre-existing class. इस बात का मीनिंग ये है कि सपोज हमारे पास एक क्लास है मैनेजर क्लास. मैनेजर क्लास में 100 ऑफ मेथड्स हैं. मैं दो मेथड्स का एग्जांपल लेता हूँ. सपोज एक मेथड है व्यू अकाउंट नंबर एंड सेकंड वन है व्यू बैलेंस. ये दोनों ही मेथड मैनेजर क्लास के अंदर है. अभी जो दोनों मेथड्स में सपोज करो हमने 100 लाइंस का कोड लिखा है, दोनों में अलग अलग सेपरेटली, कि हमें बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए कोड ये है 100 लाइंस का, और हमें अकाउंट नंबर व्यू करना है उसके लिए कोड ये है. अब कस्टमर के लिए भी ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. या तो ये है कि कस्टमर क्लास के अंदर हम दोबारा वो जो दो मेथड्स हैं उनको दोबारा रीराइट करें. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इनहेरिट कर लिया मैनेजर क्लास को, और उसके जो जो मेथड्स हमको रिक्वायर्ड हैं उसको हमने कस्टमर क्लास में आके एक्सेस कर लिया. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं. टोटल जावा हिरार्की डिपेंड्स ऑन इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट. आपने यदि 1,00,000 लाइन का कोड भी लिखा है, आप उसको इनहेरिट करना चाहते हैं, तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस. आप लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हिरार्किकल इनहेरिटेंस. तो आप लोग देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है कि हमारी जो बेस क्लास है और ड्राइव क्लास है, तो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को ड्राइव क्लास ने एक्सेस किया हुआ है. इट मीन्स बेस क्लास हमारी सुपर क्लास है और ड्राइव हमारी सब क्लास है. आफ्टर दिस जो भी प्रॉपर्टी, जो भी मेथड्स हमारी बेस क्लास में है वो बाय डिफॉल्ट ड्राइव क्लास में आ जाएंगे. अगला इनहेरिटेंस है मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि इस वाली क्लास ने टू और मोर क्लास की प्रॉपर्टी को अपनी क्लास में एक्सेस किया हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस. अगला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि बेस क्लास की प्रॉपर्टी ड्राइव क्लास के पास है, ड्राइव क्लास की प्रॉपर्टी ड्राइव क्लास 2 के पास है. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मल्टी लेवल. अगला है हिरार्किकल. इसमें क्या है कि एक बेस क्लास है और उसी क्लास की प्रॉपर्टी को डिफरेंट ड्राइव क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ने एक्सेस किया हुआ है. दिस इज द हाइब्रिड है. हाइब्रिड का मतलब है यू कैन कंबाइन द सिंगल एंड मल्टीपल एंड मल्टी लेवल एज यू नीड. तो दीज आर द बेसिक टाइप्स, और वी कैन से कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस comes into the single, multiple, multi-level like this. आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे थ्रू द कोड, तो यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंड हाउ इनहेरिटेंस विल वर्क. हमारे पास एक क्लास है एनिमल. हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है एनिमल क्लास का, और उसके अंदर हमने दिस इज एन एनिमल, हमने एक लाइन का कोड लिखा है. अब डॉग क्लास ने एनिमल क्लास को इनहेरिट किया हुआ है. बेसिकली जैसे हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब जिसे हमने इनहेरिट किया हुआ है एनिमल क्लास को, तो एनिमल क्लास में जितने भी मेथड्स हैं वो अब डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस.